So hey guys, welcome back to my channel Code Genius Riya. So in this video I will discuss another LeetCode question with you all, that is maximum erasure value. So what is given to us? You are given an array of positive integer nums and want to erase a sub-array containing unique elements. The score you get by erasing the sub-array is equal to the sum of its elements. Means you are given an array of named nums and in this you have given a positive numbers, collection of positive numbers, and you have to find a sub-array which contain the unique elements. Means element should not repeat itself. Okay, the score that will you will get after getting a sub array, and if you sum all these elements, whatever you get a sum. So if you maximize the sum now, the maximum score you will get, this will be the answer of your question. Okay, so as you can see here from this example, I will tell you step by step how you will get to know that this sub array we have to be taken. Okay, so let's start. First of all, I'm talking about my question, that is maximum sub-array, maximum erasure value. So you have to find a sub-array which contain the maximum sum. Okay, so I have taken the same example that is given already to you in the example. What is 4, 2, 4, 5, 6? This is our array. If suppose I'm taking the element of, suppose this one, if I take these elements, it is 2, 4, 5, what I will get the sum equal to 11. Okay, I'm getting the sum equal to 11. And suppose if I take the another for loop, and that is, suppose if I am taking 4, 5, 6 in these elements, so what will be sum encounter it? That is 15, because 6 plus 4 is 10 and plus 5 15. So I will get the sum equal to 15. After that, if I want to encounter in another sub array 4, 5, 6, if I used to take these elements, so what I will get, my sum is equal to 17. And if you will see, the maximum sum occurring is 17. So you have to take this sum, because it does not contain any repeating elements, because it just have the unique elements around it. So the main objective of this is you have to find the maximum sub array. So you have to see that this sub array containing the 4 elements, these are totally unique. That's why I'm getting the maximum sum of it. So you have to be think like approach this. Okay, so first of all, what is step you have to go in your follow, that is remove a sub array. You have to be remove the sum array to get the maximum sum or output of it. Okay, after that, what is done, it should have the unique elements, and means no same element should be repeated. That I have already told you that you have to take a sub array that does not carry any duplicate elements. Okay, so what you have to do is simply find out the maximum sub array and it's have the maximum sum. So it will be the answer, that is maximum sub array. ठीक है, इतना हमें आ गया. So now what we need to do is simply what we will do is the reason, the approach we will use here is sliding window. So what you can see here, this is our example 4 to 4, 5, 6. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना 3 तरह के वेरिएबल बनाएंगे. पहले करंट सम इक्वल टू 0 टू फाइंड कि हमें एक्चुअल अभी सम कितना मिल रहा है. ठीक है, फिर मैं करूँगी i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0. अगर आपको स्लाइडिंग विंडो में पता होगा, ये कॉन्सेप्ट लगता है कि उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स हमें डिफाइन करना पड़ता है, मतलब लेफ्ट साइड वाला इंडेक्स और राइट साइड वाला इंडेक्स. ठीक है, आई हैव टेकन स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू i इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 0 इज द एंडिंग विंडो और एंडिंग इंडेक्स ऑफ द विंडो. ठीक है, तो हम लोग क्या करें, आंसर इक्वल टू 0. व्हाट डज इट मीन इज we use the answer variable to store the maximum sum of it. Okay, so that's why I'm using answer. In current sum I'm using for find out. In every step what I'm getting the sum, but we need to store the sum now to actually going to the output that what I'm getting is that. Okay, that's why I have to be store somewhat, and that's why I'm using current sum equal to 0. Okay, so first of all I will, what's my I will start from 4. Initially j is also starting from फर्स्ट पोजिशन. ठीक है, तो i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट हुआ. सो व्हाट आई विल डू इज आई हैव टू बी ट्रेवर्स द होल द सब एरे. हमें j फॉर लूप को पूरा चलाते जाना है. i फॉर लूप किस लिए यूज हो रहा है, i इज यूजिंग सो दैट माई सब एरे शुड कंटेन सिंगल एलिमेंट और मतलब नॉट कंटेनिंग अ डुप्लीकेट एलिमेंट्स. ठीक है, यूनिक एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम i का यूज कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल माई i इज एट फर्स्ट पोजिशन, दैट इज 4, and similarly j is at my first position. ठीक है, आफ्टर दैट बना हम, अगर हमारे क्या होगा कि हमने 4 ऐड कर लिया, तो वी हैव टू बी एट इनिशियली 4 हम लोगों ने ऐड कर लिया, तो हमारा करंट सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियली 4 हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, व्हेन आई एम गोइंग टू माई
यहाँ पे आगे बढ़ूंगी, ठीक है। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, फिर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जे की वैल्यू जैसे ही 2 हुई तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे हमारे हेड सेट में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा करंट सम 4 + 2 6 हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। तो हमारे आंसर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अभी तक कितना हो जाएगा आंसर हमारा 6, क्योंकि 4 + 2 = 6। ओके, इतना हमें समझ आ गया। तो हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, देखो हेडसेट यूज कर रहे हैं। हेडसेट व्हाई आई एम यूजिंग हेडसेट टू स्टोर द यूनिक एलिमेंट। ऑलवेज रिमेंबर वी यूज हेडसेट टू स्टोर द यूनिक एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, आंसर वेरिएबल है ना, उसमें भी हम लोग कौन सा मैक्सिमम निकालेंगे, जो आंसर हमारा है और जो करंट सम, मतलब वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम सम इन एवरी स्टेप ना। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग आंसर वेरिएबल हियर, ओके। उसके बाद क्या होगा, मैं पहले 2 यहाँ पे 4 पे थी, देन आई हैव जंप टू 2। आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं 2 से कहाँ जाऊंगी, फिर मैं 4 पे, ठीक है। जैसे ही मैं 4 पे गई, आई हैव फाउंड कि हमारा 4 तो हमारा हेडसेट में ऑलरेडी है। आई हैव टू बी कट डाउन द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द सब एरे विच इज कंटेन द यूनिक एलिमेंट्स। तो मैंने 4 को हटा दिया अपने हेडसेट, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू यहाँ पे कि रिमूव फ्रॉम द हेडसेट। हमें सबसे पहले स्टेप क्या है, हेडसेट से रिमूव करना है, ठीक है। जैसे मैंने हेडसेट से रिमूव किया ना, तो दिस फर्स्ट एलिमेंट विल बी कट डाउन फ्रॉम माई टोटल एरे। सो मैंने आई कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। अब मेरा क्या, जिस सब स्टार्ट होगा, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम दिस एलिमेंट 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे एंड वी हैव टू बी फॉरवर्ड, आगे जाते जाना है। तो हम लोग ने 4 को हटा दिया, हमारे 2 ले चुके थे ऑलरेडी। तो नाउ आई मतलब 4 यहाँ पे 4 पे भी चलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, -4 किया है मैंने 6 में से। ऐसा क्यों, बिकॉज वी हैव रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। सम कितना हो गया 2, फिर से 4 ऐड किया तो 2 + 4 हो गया। तो हमारा कितना आ गया सम 6। सिमिलरली यहाँ पे फिर क्या होगा, हम लोग जे 5 पे जाएंगे। फिर जे कैसे कहाँ पे गया, 5 पे। 5 पे जैसे ही गया तो यहाँ पे करंट सम कितना हो जाएगा 6, हमारा सम आया था अभी तक, तो इसमें क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो हमारा सम कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। और जैसे ही 11 हुआ तो हम लोग आंसर वैल्यू को अपडेट कर देंगे, बिकॉज वी हैव टू बी स्टोर द मैक्सिमम सम आई एम गेटिंग, ठीक है। पहले 6 कैसे आया, 4 स्टार्टिंग 4 और 2 को ऐड करके, लेकिन अब 11 कैसे आ रहा है, 4 को हमने हटा दिया और हम लोगों ने 2 4 5, ठीक है, तो इसको ले लिया। तो हमारा कितना सम आ रहा है अभी 11, ठीक है। फिर हम लोग क्या करें, 5 आई हैव ऑलरेडी टेकन, तो अब हम लोग किस पे जाना है, 6 पे। तो 6 पे जाएंगे तो जे की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जे जैसे ही आया तो हम लोग उस यूनिक एलिमेंट है तो हेडसेट में स्टोर हो जाएगा। 6 जैसे ही स्टोर हुआ हमारा, तो हम लोग करंट सम में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। +6 किया तो हमारा 17 आ गया। तो यहाँ आंसर नाम का जो वेरिएबल था उसमें भी हम लोग उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। दैट इज आई एम गेटिंग द मैक्सिमम सम इक्वल 17, ठीक है। तो हमने जैसे आपको बताया था, जैसे यहाँ पे मैंने रिमूव किया था ना, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने रिमूव का मतलब सब्ट्रैक्ट भी किया है। पहले रिमूव करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग, मैं आपको एक और बता दे रही हूँ कि मैंने एक्चुअली किया क्या है कि देखो, वी हैव गिवन, हमारा क्या दिया गया था, हमें ये नाम का 4 2 4 5 6 हमें दिया गया था, ठीक है। मैं आपको एक नई विंडो में लेके चलती हूँ। देखो हमें सम कितना दिया था, 4 2 4 और 5 एंड 6। तो हमें क्या यूनिक एलिमेंट स्टोर करने हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट यूजिंग अ हेडसेट यूज करने, उसमें क्या एलिमेंट डालते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आई को भी यहाँ रखेंगे और जे को भी यहाँ करेंगे, ठीक है। जे हम लोग यूज करेंगे टू ट्रेवर्स माई होल एरे, ठीक है। सब एरे को मतलब पूरे एरे को ट्रेवर्स करने के लिए यूज करेंगे। आई क्या होगा, मैं स्टार्टिंग विंडो बताएगा, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स हमारी स्लाइडिंग विंडो को बताएगा, क्योंकि हमें एक सब एरे चाहिए ना, उसमें क्या चाहिए, हमें यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। तो जरूरी नहीं कि हमारा आई मतलब इनिशियली स्टार्टिंग से 0 मतलब स्टार्ट हो हमारा, ऐसे तो कंपलसरी है नहीं, हमें सब एरे चाहिए। तो इसका इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ हो सकता है, इसलिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, आई यूज कर रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, जैसे ही हमें कोई डुप्लीकेट एलिमेंट मिलेगा तो हम लोग आई की वैल्यू को एक शिफ्ट कर देंगे आगे, ठीक है। तो जे पहले इनिशियली 4 था, तो यहाँ पे 4 आ गया। करंट सम, यहाँ पे मैं करंट सम लिख दे रही हूँ और यहाँ पे मैं लास्ट वाला मैक्सिमम सम लिख दे रही हूँ, एम, ठीक है। आप समझ जाना, करंट सम मतलब अभी कितना आ रहा है और मैक्सिमम सम कितना आ रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो करंट सम इनिशियली कितना था, 4, ठीक है। तो 4 मैंने यहाँ पुट भी कर दिया। फिर क्या होगा, 2 पे जाएगा तो जे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आया तो यहाँ हेडसेट में डालेंगे वैल्यू, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 + 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6। मैक्सिमम सम इनिशियली देखो 0 रखा था, करंट सम को भी 0, तो अब कितना हो जाएगा, पहले 4 था और अब कितना हो जाएगा हमारा सम 6 है, ठीक है। मैक्सिमम सम बता रहे हैं अभी। फिर क्या होगा, जे यहाँ पे गया, जे जैसे यहाँ पे गया हम इसमें हेडसेट में पुट नहीं कर सकते, बिकॉज हेडसेट शुड कंटेन बस यूनिक एलिमेंट्स। तो 4 यहाँ पे आ गया, 4 जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसको काट देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ से डायरेक्ट हो गया, तो ये जैसे ही डायरेक्ट हुआ करंट सम में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -4 से ये 2 आ गया।
करंट सम में हम लोगों ने क्यों माइनस किया, इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे देखो करंट सम में ना हमें हर एक स्टेप में सम फाइंड आउट करना है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +4, क्योंकि आई एम एडिंग दिस वन 4 नाउ, ठीक है। तो हमारा सम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इट जस्ट गो हियर, तो यहाँ पे गया, जैसे हमारा j कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे एलिमेंट में, यहाँ 5 स्टोर हो जाएगा। 5 जैसे ही स्टोर हुआ तो यहाँ पे +5 आ जाएगा, तो +5, 6 + 5 कितना होता है 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। जैसे यहाँ 11 आया तो हमारा मैक्सिमम सम में भी अपडेट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 11। अब क्या होगा, लास्ट वाले एलिमेंट पे जाएगा, दैट इज दिस वन। और आई मैंने बताया था कि जैसे डुप्लीकेट एलिमेंट मिलेगा ना तो यहाँ आई शिफ्ट हो जाएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कितना है एलिमेंट 6 ले लिया मैंने, 6 जैसे ही आया तो यहाँ पे क्या जाएगा +6, जैसे यहाँ +6 आया तो अभी करंट सम कितना हो जाएगा 17, ठीक है। 17 हुआ तो यहाँ पे उस टाइम ही अपडेट हो जाएगा, तो हमारा मैक्सिमम सम कितना आ जाएगा 17। तो मैं आपको यही वाला 4 2 5 6 मैंने एग्जांपल लिया है ना, तो यही एग्जांपल कहाँ था हमारे, यहाँ पे देखो 4 2 4 5 6 था एग्जांपल, तो आउटपुट कितना आ रहा है 17, मतलब जो अप्रोच हमने लगाई वो सही थी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ कोड हमारा कि क्या है, मैक्सिमम स्कोर है और करंट स्कोर है, ठीक है। तो मैंने एक सेट नाम का लिया है, मतलब है सेट लिया है टू स्टोर माई एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेट में यहाँ पे इंटीजर क्यों लिखा है, बिकॉज व्हाट आई एम यूजिंग, मतलब एरे के अंदर क्या है वैल्यूज है इंटीजर टाइप की, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इंटीजर हियर। उसके बाद मैंने फॉर लूप बताया था आपको, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलाना है हमारा फॉर लूप, ठीक है। तो मैंने ये आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि फॉर लूप ऑफ j इज गोइंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू मतलब लास्ट इंडेक्स, तो आई एम यूजिंग j फॉर लूप टू ट्रैवर्स माई होल एरे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, व्हाइल सेट डॉट एड नम्स ऑफ j, मतलब ये एलिमेंट क्या चेक करेगा कि हमारे जो सेट है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं वैल्यू, अगर प्रेजेंट वहाँ पे ऑलरेडी है तो उसमें क्या करेगा कि करंट स्कोर आ रहा है ना उसमें से माइनस कर देगा, और क्या करेगा उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। माइनस करेगा और रिमूव कर देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखो अभी हम 4 पे जैसे गए ऑलरेडी प्रेजेंट था हमारे में, तो हम लोग क्या कर देंगे उसको रिमूव कर देंगे, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया इस एलिमेंट को, ये इसके कहने का मतलब है कि मैंने रिमूव भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आ गया, उसके बाद क्या किया है कि हम लोग क्या करेंगे करंट स्कोर में ना जो वैल्यूज आती है नाम सब जे की उसको ऐड करते जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि हम लोग देखो नेक्स्ट एलिमेंट से हम वैल्यूज ऐड करते जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि जो जो हमारे नम्स ऑफ जे में वैल्यूज आते जा रही है वी आर गोइंग टू बी ऐड दिस, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे करंट सम की वैल्यू आ गई, क्या करेंगे मैक्सिमम स्कोर में मैंने बताया था आपको कि इनिशियली कितना था मैक्सिमम स्कोर, यहाँ पे देखो इनिशियली 0 था, फिर कितना हो गया था हमारा 6 हो गया, पहले 4 हुआ था, तो मैक्सिमम स्कोर की वैल्यू कितनी आ गई पहले 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था पहले 4 था, फिर मैक्सिमम सम की स्कोर वैल्यू कितनी आ गई थी 6, यहाँ पे ओवरऑल मैक्सिमम स्कोर कितना आ गया 6, ऐसे कैसे गया फिर 6 यहाँ पे इधर पे वैल्यू 6 आ गई और करंट स्कोर की वैल्यू 11 आ गई थी, तो मैक्सिमम स्कोर अपडेट हो गया था इनिशियली यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे क्या हुआ था कि 11 था और करंट स्कोर की वैल्यू कितनी हो गई थी 17, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर फाइनली कितना आया था हमारा 17। अब फाइनली आ गया हमारा फॉर लूप के बाहर निकल गए क्योंकि हमने पूरा एरे जो ट्रेवर्स कर लिया, तो रिटर्न करवा देगा मैक्सिमम स्कोर कितना आया था हमारा 17, ठीक है। मैं इसको रन करके देखती हूँ एक बार, देखो ये रन भी हो गया एक्सेप्ट भी हो रहा है, तो बहुत इजी सॉल्यूशन था, देखो बहुत ज़्यादा इजी सॉल्यूशन था। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, थैंक यू।